copper loss. This can be reduced by making winding of copper, as copper has less resistivity, so heat produced will be less. Sir, Now what? After resistivity? So heat produced will be less. sir, Yes. सर कॉपर हैज के बाद से फिर से रिपीट कर दीजिए. Pardon? Copper? कॉपर हैज के बाद से फिर से रिपीट कर. Copper has less resistivity. So heat produced will be less. Now what happens when current flows through this winding? Heat is produced. H is equal to I square RT. Heat produced when current flows through a wire, H is equal to I square RT. So if you are taking the winding of material having less resistivity, so less resistance, then heat produced will be less. तो सबसे लेस रेजिस्टिविटी मटेरियल तो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर की वाइंडिंग बहुत कॉस्टली होगी, तो सेकंड नंबर पे भी प्रिफर कॉपर. तो जनरली गुड क्वालिटी ट्रांसफार्मर हैज वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे वाइंडिंग एल्युमिनियम की जाती है. बट वाइंडिंग एल्युमिनियम की है तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, और फिर बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी ट्रांसफार्मर में दिस वाइंडिंग विल बी ऑफ स्टील वायर. So these are the losses and how they can be reduced. So generally question comes, what are the losses in transformer, two losses in transformer and how they can be reduced. तो पहली ये लाइन लिखनी होती है बस. पहला लॉस का नाम दोगे हिस्टैरिसीस लॉस and can be reduced by using soft iron in this way. या फिर कोई एक पर्टिकुलर को पूछ सकता है. Write down the question. Output voltage of an ideal transformer is 24 volt. If connected to an alternating current means सर एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से. output voltage of an ideal transformer is 24 volt if connected to an alternating current means of 240 volt full stop. Using this transformer to light the bulb, using this transformer to light the bulb of 24 volt comma 24 watt rating, 24 volt comma 24 watt rating comma calculate the current flowing in the primary coil of the circuit. Current flowing in the
primary coil of the circuit. Now what you have here, output voltage of an ideal transformer (24 volt). यहाँ पे 24 volt आउटपुट में है। If connected to an alternating current means of 240 volt, 240 volt means में 240 volt, दिस इज VP हो गया, ये VS हो गया। यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर टू लाइट अ बल्ब, यू हैव टू लाइट अ बल्ब जिसकी रेटिंग है 24 वोल्ट 24 वॉट। करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, यहां पे प्राइमरी में करंट निकालनी है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 240 वोल्ट यू हैव अप्लाइड, आउटपुट में तुम्हें 24 वोल्ट चाहिए। प्राइमरी में करंट चाहिए। नाउ इस डेटा से, बल्ब की रेटिंग से यू कैन फाइंड द करंट नीडेड बाय द बल्ब। अगर बल्ब की रेटिंग दी होती है तो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी तुम निकाल लेते हो और करंट भी निकाल लेते हो। तो I इज इक्वल टू P बाई V अप्लाई कर दो। करंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? I इज इक्वल टू P बाई V। पावर ऑफ द बल्ब इज 24 वॉट, वोल्टेज इज 24 वोल्ट, तो करंट कम्स टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब सेकेंडरी में करंट 1 एम्पियर हो गई। द बल्ब इज नीडिंग 1 एम्पियर करंट, तो सेकेंडरी में करंट 1 एम्पियर। अब IP निकालना है और VP दिया है, VS दिया है। VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। VS 24 वोल्ट, VP 240। प्राइमरी में करंट यू हैव टू फाइंड और सेकेंडरी में 1 एम्पियर वी हैव कैलकुलेटेड। तो IP कम्स टू बी आई थिंक 0.1 एम्पियर। तो प्राइमरी में करंट हो गई 0.1 एम्पियर। Any problem? Yes, any problem? Yes, no? No, sir. Okay, next. A transformer has 100 turns. A transformer has 100 turns in its primary coil. And transformation ratio is 100. Transformer has 100 turns in the primary coil and transformation ratio is 100. Input voltage and power, input voltage and power are 220 volt, 220 volt and 1100 watt respectively. 220 volt and 1100 watt respectively. Calculate first part, number of turns in secondary coil.
number of turns in second coil, number of turns in secondary coil. Second part, current in primary coil. Third, voltage in secondary coil. Current in secondary coil and power in secondary coil. Now try this question. Find the answers. सेकेंड है करंट इन प्राइमरी कॉइल. सेकेंड इज करंट इन प्राइमरी कॉइल. Transformer has 100 turns in the primary coil, that is given in the question, and transformation ratio 100. Transformation ratio 100. Input voltage and power are 220, 1100. इनपुट वोल्टेज Vp दिया है और इनपुट पावर दी है, और सेकेंडरी में आउटपुट पावर तुम्हें फाइंड करनी है. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को यूज करो. R इज इक्वल टू NS अपॉन NP. हंड्रेड इज इक्वल टू NS और NP 100 दिया है, तो NS विल बी कमिंग 10,000. तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 10,000. देन करंट प्राइमरी में निकालनी है. अब देखो, प्राइमरी की पावर दी है और प्राइमरी की वोल्टेज दी है, तो पावर इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी. इनपुट पावर होगा इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज हुई प्राइमरी की वोल्टेज. तो पावर इनपुट 1100, इनपुट वोल्टेज 220, आईपी निकल आएगा यहां से. देखो क्या आ रहा है, 50 एम्पियर या 5 एम्पियर? 5 एम्पियर. तो इनपुट करंट 5 एम्पियर. देन Vs पे आओ. Vp है, Vs निकालना है और R दे रखा है. Vs अपॉन Vp, NS अपॉन NP, दैट इज R. तो Vs निकालना है, Vp 220, और इसको छोड़ दो, R सीधे ले लो 100, कैलकुलेशन कम हो जाएगी. तो Vs इज 22,000 वोल्ट. तो सेकेंडरी में वोल्टेज हो गई 22,000 वोल्ट. फोर्थ पार्ट में Is निकालना है. Vs है, Vp है और Ip है, Is निकल आएगा. Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ip अपॉन Is. ट्रांसफार्मर जब ये कुछ बोल नहीं रहा है तो फिर हम आइडियल लेके ही चलेंगे. अगर एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी होगी 100% से डिफरेंट, तो वो बताएगा. Vs तुम्हारा हो गया
22,000, BP is 220, IP we have calculated 5 और IS निकालना है 100, IS 20 एम्पियर। तो सेकेंडरी में करंट हो गई 20 एम्पियर। कुछ गड़बड़ है, आंसर मैच नहीं हो रहा है। सर 5/100 होगा ना? ये होगा 5/100, 5/100, 0.05 एम्पियर। एंड फिफ्थ पार्ट में पावर आउटपुट या सेकेंडरी में पावर, सेकेंडरी की वोल्टेज, सेकेंडरी की करंट। सेकेंडरी में वोल्टेज 22,000 और सेकेंडरी में करंट 0.05। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 1100 वॉट। So in this way you will be doing the questions of transformer. इजी होते हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि इनपुट प्राइमरी में फीड होगा और आउटपुट यू विल बी गेटिंग अक्रॉस सेकेंडरी एंड अकॉर्डिंगली यू विल राइट द वैल्यूज। Now any problem? Any problem you have?